Good morning, students. Welcome to IP class. Today, we will continue our topic, that is Pandas data frame. Addition of rows. Data frame में rows का addition कैसे होगा? How we can add rows into the data frame? First, we will import pandas as pd1. pandas को import किया हमने. Then we will create two data frame. Number one df1, in which 1 2 3 4 are two rows and column names are a and b. In the second data frame, we have created 5 6 and 7 8 two rows and column names are a and b. Now we will write df1 equal to df1 dot append df2. तो df1 के नीचे टू रोज df2 की ऐड हो जाएंगी 0 1 पे ही. When you will print this data frame df1, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी. अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ. आउटपुट की आएगी. और अगर हमें कोई रो डिलीट करनी है तो df1 नेम ऑफ द डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप एंड इंडेक्स ऑफ द रो. नाउ वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस. ये हमने लिख दिया import डाटा pandas as pd1 df1 दो डाटा फ्रेम बनाए df1 और df2 नाम से, in which column names are a and b. और now we will run this program. You will see that a and b are the column name and 0 and 1 1 and 2 and 3 and 4. तो एडिशन हो गया रोज का. नीचे 0 1 0 इंडेक्स पे 5 और 6 ऐड हो गया जो सेकंड डाटा फ्रेम में था रो में, और फर्स्ट में जो सेकंड डाटा फ्रेम में था वो 7 और 8 वो ऐड हो गए यहाँ पर. तो इन दिस वे वी कैन ऐड टू if you want to delete df1 equal to drop dot df1 dot drop and the label name is rows index. That is, suppose we want to delete 0 index row from data frame 1. When you will print df1, now 0 index row will be deleted. You can see the output of that. That means 0 row will be deleted from this data frame. If you want to delete row number 1 with index 1, then you will write drop d1. So what is the syntax to delete the rows? Data frame name dot drop and index of the row. Now first index row will be deleted from the data frame. Now we will move to the next slide. That is head and tail function. Head function return the first n rows, observe the index value. The default number of element to display is 5, but you may pass a custom number, and tail returns the last n row. That means if you want to
display starting two rows, then you will use head function. And if you want to delete and if you want to delete and if you want to delete if you want to display last two rows, then you will use tail functions. We will do the practical of this one. Yes. Now I will explain this program. Import pandas as PD. First we will import the pandas. Then we will create a dictionary of series name D, in which name, age and rating are three headings, three columns, and these are the values: Tom, Jack, Ricky, Tom 25 and 4.23, that is the first row, James 26 and 3.24 is the second. In this way we have created a dictionary of series. Then we will create a data frame. अब हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया df के नेम से और उसमें ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज पास की। ये हमारा डाटा फ्रेम आ जाएगा यहाँ पर। इसमें कुछ यहाँ पर df को आप इसमें करोगे प्रिंट में तो राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, बिकॉज प्रिंट इज द फंक्शन। ये आपका पूरा अभी आपका डाटा फ्रेम आ जाएगा। और इनमें से अगर आप फर्स्ट की स्टार्टिंग की टू रोज लेना चाहते हो, स्टार्टिंग की टू रोज को दिखाना चाहते हो, तो वी विल यूज हेड फंक्शन, दैट इज प्रिंट df डॉट हेड टू। ये स्टार्टिंग में देखो आपका पूरा डेटा फ्रेम आ गया 0 1 2 3 4 5 6 जो भी आपने वैल्यूज डाली थी उसमें। और उसके बाद फर्स्ट टू रोज आ गई डाटा फ्रेम की बिकॉज ऑफ हेड फंक्शन। अगर आप 3 रोज लेना चाहते हो तो 3 ले लो और 4 लेना चाहते हो तो 4। और टेल फंक्शन क्या करेगा, लास्ट की टू रोज आ जाएंगी। देखो हेड फंक्शन में आपके पास, फिर मैं दिखाता हूँ एक बार हेड फंक्शंस में। ये लास्ट टू रोज थी, फर्स्ट टू रोज थी 0 और 1 की, तो 0 और 1 वाली रोज इसने उठा ली है टॉम्स और जेम्स के नाम से। और जब आप अगर यहाँ पर हेड की जगह टेल फंक्शन यूज करोगे तो लास्ट की टू रोज आ जाएंगी आपके पास। अगर इफ यू वांट टू टेक 3 रोज फ्रॉम दिस डाटा फ्रेम देन यू विल राइट टेल 3। तो यहाँ पर आ गई आपके पास 5 और 6 रोज आ गई यहाँ पर, स्मिथ 5 स्मिथ वाली रो और 6 जैक वाली रो।
बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये क्या लेगा, अगर हम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे, देन इट विल टेक स्टार्टिंग 5 रोज, स्टार्टिंग की 5 रोज ले ली इसने, अगर हम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे, कि अगर हम नहीं लिखेंगे वी डू नॉट राइट एनी पैरामीटर और एनी वैल्यूज टू द हेड फंक्शन, देन इट विल बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 5, it will take 5 values by default. Next is this is the head and tail function. Now pandas data frame, accessing a data frame with a boolean index. Boolean index means जैसे अभी रो में आपने वैल्यूज देखी थी, हम रो का इंडेक्स भी दे देते हैं, तो अगर हमें ट्रू फॉल्स या 0 1 2 से तो हम ले ही देते वैल्यूज, अगर 0 और 1 के लिए और ट्रू और फॉल्स के लिए हमें वैल्यूज उठानी है इन रो के इंडेक्स के लिए, तो रो के इंडेक्स से हम 0 1 और ट्रू फॉल्स से वैल्यू उठा सकते हैं बूलियन के लिए। उसके लिए एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमने पांडा को इंपोर्ट किया, देन वी विल क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट in which 3 headings are there, 3 column name, degree and score, और ये आपके पास 3 रोज आ गई हैं उसके बाद, और अब हम क्रिएट कर रहे हैं डाटा फ्रेम विद बुलियन इंडेक्स, df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम डिक्शनरी, डिक्शनरी जो हमने बनाई थी वो इसमें पास कर दी, और उसका इंडेक्स जो रो का नंबर थे 0 1 2 की जगह अब क्या लिखे आएंगे, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। और अगर हमें सिर्फ ट्रू वाले इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंट df डॉट एलओसी, एलओसी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर पास कर देंगे ट्रू, तो ट्रू वाली रोज प्रिंट हो जाएंगी, और फॉल्स लिखेंगे तो फॉल्स वाली रोज प्रिंट हो जाएंगी। अब फिर हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस वन। Just wait for a minute, then we will do this practical. Through copy and paste we will save the time. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे, अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। इंपोर्टिंग पांडास एज पीडी, पांडास को इंपोर्ट किया, देन वी विल क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट in which name, degree and score are the column name, and these are the there may be some mistake. Okay, first we will print this data frame. पहले हम ये डाटा फ्रेम 2 बार हम प्रिंट कर रहे हैं, एक बार ट्रू वैल्यूज के लिए और एक बार पूरे डाटा फ्रेम को हम प्रिंट कर रहे हैं, जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। It will give an error.
Wait for a minute. I will try to remove the error. Again, it will give an error. Wait for a minute. It will give another. Now you can see name, degree and score. First, full data frame will be displayed through printdf, that is true, false and true, and after that we will use LOC function to retrieve the values to only true values, Mojang, ABC and 90. If we want to take false values from that, then we will write here false. तो फॉल्स वाली रोज ही सिर्फ आएंगी आपके पास। तो बुलियन वैल्यूज के थ्रू हम यहां पर देखो आप
तो बुलियन वैल्यूज के थ्रू हम क्या करते हैं, रो के इंडेक्स को बुलियन वैल्यूज के थ्रू हमने एक्सेस किया इसमें। तो लेट्स, इट इज द एंड ऑफ द टुडे सेशन।